This is Shivani Tripathi and I welcome you all to Let's Learn. Today I will be explaining the topic preposition. This topic is important for class 7th and 8th. And as you know that our half-yearly exam is approaching soon, and this is the last chapter that we need to complete before half-yearly exam starts. So let's start today's video. What is preposition? A preposition is an important part of English language. It is used to show a relationship between noun and pronoun in a sentence. A preposition must always be followed by a noun or a pronoun in a sentence. It can never be followed by a verb. So what is pronoun? What is preposition? Firstly, a preposition is very important for your English language, and it is used to build a relationship between noun and pronoun in a sentence. Now there is a condition that your preposition must always followed by noun or pronoun in any of the sentence. ठीक है, आपका जो प्रीपोजिशन है वो कभी भी वर्ब को फॉलो नहीं कर सकता है. आपका प्रीपोजिशन या तो आपके नाउन को फॉलो करेगा या तो आपके प्रोनाउन को फॉलो करेगा. दूसरी बात, प्रीपोजिशन का यूज़ क्या है? प्रीपोजिशन का यूज़ है ये एक रिलेशनशिप बिल्डअप करता है आपके नाउन प्रोनाउन का सेंटेंस से. ठीक है, और इसीलिए ये नाउन या प्रोनाउन को ही फॉलो करेगा. इसको वर्ब को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है. There are three types of prepositions including time prepositions, place prepositions and direction prepositions. हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे 3 टाइप्स के preposition और उनके यूज़. ओके, हो सकता है कि एक वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट ना हो, सो देयर विल बी अनदर वीडियो फॉर दिस चैप्टर. तो ये 3 टाइप के प्रीपोजिशंस होते हैं: टाइम प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. टाइम प्रीपोजिशंस आर दोज सच एज बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग. सो टाइम प्रीपोजिशन का यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, until, till. Place prepositions are those indicating positions such as around, between and against. And direction prepositions are those indicative of direction such as across, up and down. Each types of preposition is important. जैसे कि आप लोग नाम से ही समझ सकते हो कि टाइम प्रीपोजिशंस वो होते हैं जो टाइम के बारे में बात करते हैं. प्लेस प्रीपोजिशंस वो होते हैं जो प्लेस की तरफ इशारा करते हैं, प्लेस की तरफ इंडिकेशन देते हैं. और डायरेक्शन प्रीपोजिशंस वो होते हैं जो डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करते हैं. और यहाँ पर उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं. अब हम इन्हीं 3 प्रीपोजिशंस को सेपरेटली पढ़ेंगे. ओके, वी विल रीड ईच प्रीपोजिशन विद different examples. So firstly we have preposition of time. Basic examples of time prepositions include at, on, in, before and after. So ये कुछ basic prepositions हैं जो जनरल इंग्लिश में, जनरल नॉर्मल लाइफ में आप कॉमनली यूज़ करते हो. दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड prepositions of time and they are at, on, in, before and after. They are used to help indicate when something happened, some or happens or will happen. It can get a little confusing though, as many different prepositions can be used. So we use prepositions of time to indicate when something happened, when something happens or something will happen. मतलब आप पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में जब भी किसी एक्शन के बारे में बात करेंगे, किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि ऐसा हुआ था, ऐसा हो रहा है या ऐसा होगा, ठीक है, मतलब टाइम पीरियड के बारे में,
तब हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। ये कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बिकॉज प्रीपोजिशंस में ऐसा सीन होता है कि आपका एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन एक जगह पर सही हो सकता है। ओके, सो देयर कैन ऑलवेज बी मोर देन वन करेक्ट आंसर फॉर प्रीपोजिशन। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन ही आपके सेंटेंस के लिए सही हो, एक से ज़्यादा भी सही आंसर हो सकते हैं। ठीक है, prepositions of time examples in the following are bold for the easy identification. So in each of the sentence जो आपका preposition of time है that is in the bold, ठीक है, ताकि आप उसे recognize कर सको। आपका जो prepositions of time है वो highlighted है। For example, I was born on July 4th 1982. Okay, so on here is your prepositions of time. I was born in 1982. In is your preposition of time. I was born at exactly 2 a.m. I was born 2 minutes before my twin brother. I was born after the Great War ended. So in, on, at, before and after, in all these sentences you can see we are talking about something that will happen or that has happened in the पास्ट। या तो ये सारे जो एक्शंस हैं ये कभी हो चुके हैं पहले या ये आगे होंगे। मतलब हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं टाइम पीरियड के बारे में। फर्स्ट सेंटेंस में आपका टाइम पीरियड क्या है? जुलाई 4th 1982। सेकेंड सेंटेंस में आपका टाइम पीरियड है 1982। थर्ड सेंटेंस में आपका टाइम पीरियड है 2 AM। फोर्थ में आपका टाइम पीरियड है 2 minutes बिफोर हिज ट्विन ब्रदर वॉज बॉर्न। एंड लास्ट सेंटेंस में आपका क्या है? आफ्टर द ग्रेट वॉर एंडेड। नाउ वेयर डज वी यूज दिस प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम? हम यूज़ कहाँ करते हैं इन प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम को, ये हमें पता चल गया। अब इसमें जो सेपरेटेड इसमें जो डिफरेंट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है उन्हें हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं? लेट्स सी दैट। फॉर ईयर्स, मंथ्स, सीजन्स, सेंचुरीज एंड टाइम्स ऑफ डे यूज द प्रीपोजिशन इन। ठीक है, हम इन यूज़ करते हैं किस किस प्रीपोजिशन के लिए? आई मीन किस किस सिचुएशन के लिए हम इन प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? जब हम बात करते हैं ईयर्स के लिए, मंथ्स के लिए, सीजन्स के लिए, सेंचुरीज के लिए या टाइम्स ऑफ डे के लिए। ठीक है, सी द एग्जाम्पल। आई फर्स्ट मेट जॉन इन 1987। यहाँ पे हम एक ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो 1987 में हुआ था पहली बार। ठीक है, मतलब जो हमारा टाइम पीरियड है वो क्या है? 1987, विच इज़ अपेरेंटली अ ईयर। ओके, 1987 एक ईयर है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि हम ईयर के लिए जब यूज़ करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? इन। नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स ऑलवेज कोल्ड इन जनवरी। नाउ जनवरी इज अ month and we use in for the month. Easter falls in spring each year. in यूज करते हैं सीजन के लिए। ठीक है, मंथ हो गया, ईयर हो गया, सीजन हो गया। The second world war occurred in the 20th century. हम इन यूज़ करते हैं जब हम सेंचुरी के बारे में बात करते हैं। 19th century, 20th century, 21st century. Okay, we eat breakfast in the morning. टाइम्स ऑफ डे, टाइम्स ऑफ डे क्या होता है? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। ओके, अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट। सो वी यूज़ इन कहाँ यूज़ करते हैं हम? एक बार रिवाइज करते हैं। हम इन यूज़ करते हैं टाइम्स ऑफ डे के लिए, सीजन के लिए, मंथ के लिए, ईयर के लिए और सेंचुरी के लिए। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, प्रीपोजिशन ऑन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा ऑन। For days, dates and specific holidays, okay, holiday days, use the preposition on. जब हम on यूज़ करना होता है तो हम on यूज़ करते हैं days के लिए, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ओके, डेट्स के लिए कोई भी डेट हो सकती है, लाइक दिसंबर 25th, 24th मार्च, 14th नवंबर, 5th सितंबर। ओके, लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू से हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करेंगे 5th को, सो यू कैन से वी विल सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 5th of September.
and specific holidays. Specific holiday days means like it's your birthday और गांधी जयंती, ठीक है, कोई रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, कोई भी स्पेसिफिक आपका हॉलीडे डे है. सी द एग्जाम्पल्स. वी गो टू स्कूल ऑन मंडेज बट नॉट ऑन संडे. हम स्कूल जाते हैं मंडे को, ना कि संडे को. सो मंडे इज़ योर अ डे, ओके, और संडे भी आपका एक डे है. सो जब भी आप किसी भी डेज की बात करोगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ओके, यू विल यूज़ ऑन. नेक्स्ट इज क्रिसमस इज़ ऑन दिसंबर 25th. मतलब आपका जो दिसंबर 25th है, दैट इज़ योर डेट, ओके. आप जब एक पर्टिकुलर डेट के बारे में बात करोगे तब भी आप यूज़ करोगे ऑन. Buy me a present on my birthday. Now, my birthday here is the specific holiday days. कोई specific holiday days है, ठीक है, तो वहाँ पर आपने एक on यूज़ कर दिया, ठीक. So we use on for the days, dates and specific holiday days. Next is at. For times, indicators of exceptions and festivals. For times, indicators of exception and festival use the preposition at. Example, families often argue at Christmas time. अब यहाँ टाइम की बात हो रही है कि वो जो क्रिसमस का पूरा टाइम होता है, क्रिसमस का जो टाइम पीरियड होता है पूरा, उसमें फैमिलीज अक्सर आर्ग्यू करती है. आई वर्क फास्टर एट नाइट, ठीक है, टाइम पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे, पूरी रात की बात हो रही है. इंडिकेटर्स ऑफ एक्सेप्शन है और फेस्टिवल है, ठीक है. हर शिफ्ट फिनिश्ड एट 7 PM. नाउ 7 PM इज अगेन टाइम, ठीक है, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है. फर्स्ट वन में आपने देखा फेस्टिवल की बात हो रही है, सेकेंड वन इज द इंडिकेटर ऑफ एक्सेप्शन एंड थर्ड वन इज द टाइम, ठीक है. यहाँ पे टाइम की बात हो रही है कि एट 7 आई विल मीट हर एट 5 PM. Okay, I call her at 2 PM. Okay. Now, before and after should be much easier to understand than the other examples of prepositions of time. So, before and after आपके ऐसे preposition of time हैं जो ज़्यादा ही easy हैं बाकी सारों से. Both are used to explain when something happened, happens or will happen, but specifically in relation to another thing. हम बिफोर और आफ्टर कहाँ यूज़ करते हैं? बिफोर और आफ्टर हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा कोई एक्शन या तो हो चुका हो, होने वाला हो या हो रहा हो, इन रिलेशन टू सम अदर थिंग और इन रिलेशन टू सम अदर एक्शन, ठीक है. या तो कोई एक्शन आपका किसी एक्शन के पहले हो रहा हो, या किसी एक्शन के बाद हो रहा हो, या किसी एक्शन के पहले या बाद होगा, ठीक है. मीन्स देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन टू एक्शंस. Example, before I discovered this bar, I used to go straight home after work. So, before I discovered this bar means ये बार डिस्कवर करने से पहले I used to go straight home after work. मैं straightly वर्क प्लेस से डायरेक्ट कहाँ जाता था? घर पे, ठीक है. मतलब यहाँ पे दो एक्शंस की बात हो रही है. एक एक्शन की बात हो रही है व्हेन आई डिस्कवर दिस बार, और दूसरा एक्शन आपका व्हेन आई यूज टू गो स्ट्रेट होम आफ्टर वर्क, ठीक है. सो बिफोर एंड आफ्टर इज ईजी टू यूज, किसी चीज़ के पहले या किसी चीज़ के बाद. वी विल नॉट लीव बिफोर 3 PM. डेविड कम्स बिफोर ब्रैन इन द लाइन बट आफ्टर लुइस. ओके, सो जब भी आपका कोई एक्शन किसी चीज़ के पहले या बाद में हो रहा हो तब वो होता है आपका बिफोर एंड आफ्टर, एंड दैट्स द prepositions of time. Now, other prepositions of time could include during, about, around, until and throughout. Now, here are some other prepositions of time. Example, during, about, around, until and throughout. ये सारे भी आपके यूज़ होते हैं prepositions of time के लिए. The concern will be staged throughout the month of May. Throughout मतलब सारे. Example, the concern will be staged throughout the month of May. मतलब जो ये कॉन्सर्ट है ये स्टेज्ड होगा, मतलब ये कॉन्सर्ट परफॉर्म किया जाएगा
पूरे महीने में, ठीक है, मतलब मंथ थ्रू आउट द मंथ ऑफ मे मीन्स एवरी डे इन मंथ, ठीक है, मतलब मंथ मई का जो मंथ है उसमें हर दिन परफॉर्म किया जाएगा स्टेज पे. आई लर्न हाउ टू स्काई ड्यूरिंग द हॉलीडेज. लेट मी जस्ट करेक्ट इट. Okay, yes, I learn how to read during the holidays. Okay, during the holidays मतलब holidays के दौरान, holidays में ही. He usually arrives around 3 p.m. means वो generally 3 p.m. के आसपास around आता है, ठीक है. यहाँ पे सारे ही सेंटेंसेस में आपकी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ आप किसी ना किसी टाइम के बारे में बात कर रहे हो. पहले आपने बात की मे टाइम की कि मे में ईच डे आपका जो कॉन्सर्न है, सॉरी कॉन्सर्ट है वो परफॉर्म किया जाएगा. सेकेंड में आपने बात की पूरे हॉलीडेज़ के टाइम की. थर्ड में आपने बात की अराउंड 3 p.m. मतलब जो 3 p.m. के आसपास वो जनरली आता है. It was about 6 in the morning when we made it to bed. Okay, it was about 6 in the morning मतलब सुबह के अराउंड 6 बज रहे थे, ठीक है, 6 के लगभग आसपास बज रहा था. when we got on the bed. The store is open until midnight. स्टोर कब तक खुला है? until midnight मतलब midnight तक ही आपका स्टोर जो है वो खुला है. So in each sentences you can see we are talking here about time period. Okay, it's just the different prepositions, it's just the different situation where we use different prepositions, but please keep it in mind that you can use more than one preposition, okay, or you can say there can be more than one correct answer for each preposition. एक से ज़्यादा सही आंसर हो सकते हैं. Okay, so preposition of place and preposition of direction, that we will study in the next video. Okay, so if you have any questions related to this chapter or the taught portion, you can ask me in the comment section. In the next video we will complete this topic. Till then, take care and stay safe.